So, or if, right, or if you want to turn this side, see, turn this side, you can see that monitor. You can turn this side and see that, whichever way is comfortable to you, right? Chalo, Angad, bolo, question. Triangle PQR. Triangle PQR. Right angle at Q. PR plus QR is equal to 25. Right angle at Q. PR plus QR is equal to 25. PR plus QR is equal to 25 centimeter. Okay. PQ is equal to 5 centimeter. ये 5 centimeter हो गया. ठीक है. PQ plus QR is 25. अगर ये X है तो ये 25 minus X है. सीधी बात. Find the values of sin P, cos P and tan P. Find the values of sin P, cos P, tan P. बिल्कुल आसान है. Pythagoras theorem apply करो. So what is Pythagoras theorem tell us? 25 minus X whole square should be equal to 25 plus X square. Is it fine? This square plus this square is equal to this square. 25 को square करें तो कितना होगा बेटा? 625 minus 2 into 25 is 50. ठीक है? कितना हो गया? 50x plus x square is equal to 25. कौन सा? a minus b whole square. तो a minus b whole square ही तो कर रहा हूँ. a square minus 2ab plus b square. क्या नीचे कर दिया था? तो ये दो कट गए. हो गया. तो आ गया आपका 50x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 0.25 लाओगे 600. 0 ने 0 को काट दिया. x की वैल्यू कितनी आई? 12. कर लोगे अंगद अभी? तो x की वैल्यू अगर 12 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 13. हो गया, मिल गया तुम्हें सारे. साइन पी कॉस पी सारे मेजरमेंट आ गए. इसमें क्या प्रॉब्लम था? हाँ, यस, टेल मी माय फ्रेंड आरव. आरव, आपको ये हो गया? इसको स्लाइड को आगे करूं? आरव, क्या प्रॉब्लम था बोलिए? एक्सरसाइज बोलिए. 8.3. क्वेश्चन 4 थर्ड. बोलो बेटा. tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta. ये वो वाला है ना, 3 टाइप में, 3 hands. हाँ, it should some tan square x will be there is equal to 1 plus sec theta into cosec theta. 1 plus sec theta cosec theta. Okay, sec theta cosec theta is equal to some tan square x type है. ऐसा और भी है कुछ? Just this much ना. इसमें नीचे कुछ लिखा है like use this identity. No, that you leave. That is a hint. Is there any other thing written? No. चलो इसको करते हैं. इसका LHS क्या है? इसका LHS, और मैंने लिखा नहीं LHS को. ठीक है, जो LHS है, चलो बोलोगे नहीं लिखा है तो चलो LHS लिख देते हैं शॉर्टकट. सो कॉपी कॉपी होना चाहिए था. चलो कोई बात नहीं. LHS जो भी है, वी कन्वर्ट द LHS इनटू जस्ट सी sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin theta. Generally all these problems, देखो यहाँ tan cot tan है, here it is sec cosec. So if we bring everything in sin cos, later on sin cos can be made sec cosec. That idea has to strike you. Okay, after that cot को convert कीजिए cos theta by sin theta divided by 1 minus sin theta by cos theta. Okay, just check if there is anyone who has not understood at this step. क्या इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो क्या प्रॉब्लम है? कौन सा चीज समझ में नहीं आया? हाँ, इसके इसीलिए तो अभी बोलोगे सर फिर गुस्सा करते हैं, इसीलिए तो पिछले हफ्ते का क्लास नोट भी देखना चाहिए. अ tan थीटा इज अ sin थीटा बाय cos थीटा. अ cot थीटा इज अ cos थीटा बाय sin थीटा. अ cot थीटा इज अ cos थीटा बाय sin थीटा. tan थीटा इज अ sin थीटा.
See, if you don't study and come, what is the problem? It's not about me getting angry. Now the way I will solve and the way your brain will work to receive it, the gap has increased. अब मेरे लिए आप grade 10 नहीं grade 8 टाइप बच्चे हो जाओगे फटाक से. Our reception is widening because you have not come prepared ना. समझ रहे हो गैप कहाँ हो रहा है? रोज का पढ़ाई रोज करना है. Many parents tell me, sir, only one class in a week. One class in a week इसलिए कि बाकी 7 दिन इसको खाइए. आप अगर नहीं खाएंगे, and all these identities we did last year, last class, that time you were doing all chapar. Now why are you silent? Because it is in your short term memory which is evaded. ये आपके लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर ही नहीं हुआ क्योंकि हफ्ते में आपने किया ही नहीं ना. अभी समझ में आया ये स्टेप? चले आगे. अब देखो कितना कुछ करूंगा आपको फटाक से समझ में नहीं आएगा. बहुत तोड़ के करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम अभी. जबकि I would have expected this should have been faster by you. अरे घर में मेहमान आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, वो सब अपनी जगह. यू शुड नॉट फॉरगेट यू आर इन ग्रेड 10. दुनिया कोई आपकी बात नहीं सुनेगा कि कल मेरे घर में लोग आए थे. मैं इसको स्वैप करके लिखता, फिर आप बोलते स्टेप समझ में नहीं आया. ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो स्वैप कर रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. नहीं समझोगे तो समझाऊंगा, डोंट वरी. If you don't understand, do let me know. Did you understand this step? It is a sine by cos which is divided by sine minus cos by sine. तो ये चीज उलट जाएगा. उलट जाने से ऊपर में 2 sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा आएगा. sin theta multiplies get sin square theta and this becomes this. Are we fine? Clear? Anyone who has not understood, please upfront बोलो. ऐसा नहीं कि सबको समझ में आएगा. बोलो बेटा. Somebody got hung up? Yeah. यहां से ये कैसा चीज है देखो, ये है a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी. ऐसा फॉर्मेट में है a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी. ये चीज क्या हो जाता है? a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी. अल्टीमेटली ये चीज क्या है? a बाई बी इंटू डी बाई सी. तो मैंने तो वही किया है. और फिर sin theta was taken as LCM, then sin theta minus cos theta. ठीक ना? अभी भी क्लियर? कैन आई गो हेड? चलो अब देखो तो, अभी देखो ये सब में तो तुम्हें मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगा. अब फिर तुम्हारा दिमाग जाएगा ये कैसे हुआ. Hocus pocus, see the difference what I have done. डिनोमिनेटर को स्वैप किया है. cos माइनस साइन था, साइन माइनस कॉस किया. ऐसा स्वैप कब कर सकते हो? जब -1 बाहर आएगा. वो -1 यहां दिख रहा है अभी. ऐसा आपने क्यों किया? यहां अंडेराम माइनस डंडेराम है, यहां था डंडे माइनस अंडे, तो दोनों को ही अंडे माइनस डंडे किया, इसलिए किया. ऐसा भी आपने क्यों किया? उसके पीछे भी रीजन है, देखते जाओ. अब इसका एलसीएम लेते हैं, आ जाओ. एलसीएम में क्या होता है? ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये दो अलग अलग है. तो अपना एलसीएम क्या होगा? cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा. ये समझ में आया? इस एलसीएम और इसमें क्या क्या चीज कॉमन हो गया? cos है, साइन भी है, साइन नहीं है, so साइन गोज एंड मल्टीप्लाइज हियर. तो ऊपर क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा, और इधर क्या हो जाएगा?
बस क्यों, ये क्या समझ में आया? अब अपना ग्रेड 9 का फर्स्ट चैप्टर याद करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी वो कटेगा इसके साथ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट? आ जाओ, ए माइनस बी, बहुत बहुत थिंग्स आर नॉट टफ बट थिंग्स पुल लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अलजेब्रा, इसलिए गुस्सा होता हूं आपके ऊपर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैंने ना बी स्क्वायर को पहले लिख लिया, प्लस ए बी, ठीक है बच्चा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, this is using the formula a cube minus b cube is a minus b a square plus b square plus ab। अगर ये a cube plus b cube होता तो यहां पे ये वाला टर्म माइनस हो जाता, रिमेंबर? क्लियर? डू यू रिमेंबर a cube plus b cube and a cube minus b cube? if it is a cube minus b cube it's a minus b a square plus ab plus b square, सिर्फ ये a b चेंज होता है। चले आगे, चलो नीचे कितना है? cos थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। और आप लोग ये सब प्रॉब्लम करते नहीं हो, टफ है बच्चा, समझ जाओ। एक अड़िया, ठीक है? और यहां पे 1 आ जाएगा एक, ठीक है ना? कहां पे 1 आएगा? साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आया? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब कर लोगे यहां से? अब यहां से कर लोगे? नहीं सर नहीं कर पाएंगे, लाना क्या है? 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, इसको सेपरेट कर लो, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आप कर लोगे? हाँ अभी हो जाएगा। ये क्या हो गया? दिस पोर्शन गिव्स योर 1, ये 1 यहां से आ गया, और ये क्या हो गया? सेक थीटा कोसेक थीटा। क्या वेदांत अभी भी मुंह बना रहे हो? नहीं बनेगा क्या यहां से भी? नहीं 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 नहीं, क्या मुंह तो ऐसा बना रहे हो जैसे पता किडनी निकल गई तुम्हारी। कितना हो गया ये? कोसेक थीटा एंड सेक थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू RHS। आप ये प्रॉब्लम में जाके कहां से कहां फंस जाओगे पता है? अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे, आपको हिंट क्या दिया? कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, एनसीईआरटी ने हिंट दिया। आप सब साइन कॉस करके आप यहां आ जाओगे और यहीं पे आप फंस जाओगे। नॉट दैट यू डोंट नो दिस फॉर्मूला, दिस विल नॉट क्लिक इन यू। Why it doesn't click? Maybe you have to see this problem solved in some internet or ask a teacher or ask anyone. अब एक बार जब देख लिया ना, अब सीखो कैसे प्रॉब्लम करते हैं। A new window opens in your mind. If a cube minus b cube comes, factorization should also be an option we should think. Every problem will teach you that your army suit has one more weapon which you are not watching. आपको पता ही नहीं एक और वेपन है। बोलो इससे पहले तुम्हारे दिमाग में कभी आया भी था कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रा भी लग सकता है? लगेगा। तो व्हाट डज दिस टेल मी? दिस टेल्स मी दैट मेरे सामने वाले टेबल में जो फॉर्मूला लिस्ट मैंने चिपकाया उसमें ग्रेड 9 के फॉर्मूलाज भी चिपका लो। सर कौन कौन से रखूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूलाज रखिए। सर व्हाई शुड आई नॉट कीप ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? वो नहीं आता है, ये सब आएगा। देन अनदर थिंग टू स्ट्राइक, बहुत जगह आप 1 देखोगे, 1 नहीं, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, जैसे लोग बोलते हैं ना वो देखो चिकन भाग रहा है, मेरे लिए वो बिरयानी भाग रहा है, उस तरह से आपको भी वैसे ही सोचना है। 1 नहीं, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, उसको हम यूज कर सकते हैं। वो शायद tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, वो शायद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, वो बहरूपिया होके 1 होके घूम रहा है। ये भी आपको, वो 1 नहीं, वो b बाई बी है, वो 1 नहीं, वो tan थीटा बाई tan थीटा है, वो 1 नहीं, वो tan थीटा इंटू कॉट थीटा है। ये माइंड, और ये आएगा तब जब आप करोगे, आप कर ही नहीं रहे हो। मैंने बोला था लंबा कॉपी करने के लिए, नहीं तो मेरे घर पे है नहीं, देखना पड़ेगा। नहीं, मेरी एक बात सुनिए, आपने बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाई है कभी?
हाँ, एक बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, वो कम से कम 130 रुपए 40 रुपए के ऊपर होता है। हम लोग ऐसे घरों से आते हैं कि ऐसा नहीं कि हम अगर कॉपी बोलेंगे, हमारे पापा मम्मी हमें बोलेंगे बेटा इस महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगले महीना कॉपी खरीद दूंगा। सारे बच्चे आप लोग फ्राइडे सैटरडे रेस्टोरेंट जाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, रत्नदीप में खाते हैं। एक क्लासमेट की कॉपी कोई महंगी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आपको याद नहीं है। सत्य वतन बोलना है, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। अगर आज मैं नूतन मैम को बोलूं मैम मैंने उसको ना बुक के बारे में बोला था, वो लाया नहीं, उसे आपको ही डांट पड़ेगी। क्यों रे, याद नहीं रखता है। किस वक्त ये बात बोला, जरा टाइम देख लो। मैडम को बोलूंगा मैम आप इसी वक्त में वीडियो को देखिएगा, आपके नाम का उल्लेख हुआ है आपके बेटे के साथ। मेरे पास नहीं है मत बोलो ना, 1 मिनट बेटो, मेरे पास नहीं है। नहीं, आपको याद ही नहीं है कि सर ने कुछ एक चीज बोला था। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। ये आइडेंटिटी करने में मुझे 75 इंच के स्क्रीन में कितना जगह लगा, 2 पार्ट ऑफ द स्क्रीन। हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर प्रॉब्लम विल बी डन इन 1 बुक? There's a reason why I say that. Yes ना? छुपाने के 1000 रीजन होते हैं यार। एक आइसक्रीम 200 रुपए के खा लेते हैं बास्किन रॉबिन्स का, एक कॉपी नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप अमेजोन में बुक करेंगे ना, 33 into 21 cm क्लासमेट का पैक ऑफ 2 कॉपीज 147 लिमिटेड टाइम डील, 8 दिन अभी भी है, आप खरीद सकते हैं। मैं कल ही खरीदा, आज सुबह, कल रात को डाला, आज सुबह आने से पहले घर पे, मेरे घर पे डिलीवर हो गया। शायद आपका भी डिलीवर हो जाता है। अम्मा जान की दुकान, अमेजोन इज अम्मा जान। हाँ चलिए बोलिए, किसको क्या बोलना है? somebody is asking. Yes, sir. Sir, I noticed that the part of the development exercise 8.1. हाँ 8.1 करेंगे, जितना चाहिए हम करेंगे। ये समझ में आया? मिटाओ इसको, आगे चले। हाँ बोलो। ये क्यों मैं ये जो ये माइनस पे इसको मैं हाँ, ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया ना, ये वाला समझ में आया। ये वाला समझ में तो इसमें क्या दिख रहा है, अंडेराम माइनस डंडेराम, अंडेराम माइनस डंडेराम, कट गए दोनों। तो फिर और रहा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? मुर्गा रास्ते में दौड़ रहा है पर मेरे लिए चिकन बिरयानी है, तो चिकन बिरयानी डाल दिया 1, और बाकी क्या रह गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद क्या है, इसको अलग करो। ये लड़का a प्लस बी बाई सी, क्या अलग करेंगे, a बाई सी प्लस बी बाई सी नहीं लिख सकते हैं, तो वही तो किया, a बाई सी प्लस बी बाई सी। अभी समझ में आया? पका हुआ कटहल का स्मेल नहीं आता, इसको फाड़ के दिखाना पड़ता है, कटहल पक चुका है। हाँ चलिए, कौन सा क्वेश्चन बोलिए मैडम। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कितना, 8.1। हाँ अंगद बोली, अंगद पढ़, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्या हो गया, किताब भी नहीं लाते हो। मैं बोलता हूँ मैथ्स का किताब लाया करो क्लास में। आज लास्ट, इसके बाद ना घर में स्वागत करने वाला, ये बैंगलोर से आया है, किताब लेके आया है, और तुम यार ये सोसाइटी में रह के नहीं ला सकते। आई विल राइट सच अ मेल that your parent will be viewers to do your aarti on your arrival at home. हाँ पढ़ो पढ़ो। if sin a equal to 3/4, If sin a equal to 3/4, calculate cos a and tan calculate cos a and tan a. tan a। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, सीधा बुद्धि लगाने का, मैंने बोला था 3, 4 और 5 पे हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। मान लीजिए एक को 3 ले लीजिए, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए नहीं, इसमें वो मत जाइए, डोंट गो बाय दैट। सो से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। साइन ऑफ ए दे हैव सेड एज 3/4, ओके। साइन ऑफ ए, नाउ साइन ऑफ से इज BC अपॉन दिस, तो ये 3 है, ये 4 है। अब 3 and 4, 3k and 4k, that's it, because we don't know what it is, but in the smallest ratio, ultimately they are asking us ratio only ना, ठीक है? तो इसको आप 3k ले लो, कोई बात नहीं, और इसको 4k ले लो। This is the smallest triangle that we can form, so we get sin A is equal to 3/4, which is also equal to how much, BC upon AC. So we can write BC to be equal to 3k,
where k is a constant. We don't know k कितना है, and AC कितना आया बेटा 4k. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताएगा? AB should be equal to root under height square minus this square. So 4k square minus 3k square कितना हो गया? 16k square minus 9k square. तो k square को कॉमन लेके बाहर ला सकते हो, तो k square बाहर आने से k होके बाहर आएगा. और 16 minus 9 कितना होता है? 16 minus 9 7 होता है ना? 4 square is 16. तो हमारा वैल्यू कितना आया? AB's वैल्यू इज इक्वल टू k रूट 7. बस हो गया. अब हमें करना क्या है? cos A निकालना है. cos A क्या होता है? एडजेसेंट साइड AB बाई AC. तो AB की वैल्यू कितनी है? k रूट 7 डिवाइडेड बाई k इंटू 4. AC ना 4. k ने k को काट लिया तो बन गया कितना? रूट 7/4. इस तरह से आप tan A भी निकाल लीजिए. मैंने जानबूझ के नहीं निकाला. tan A तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, साइन बाई कॉस कर सकते हैं, या फिर आपको पसंद है कि आप ऑपोजिट बाय एडजेसेंट करना चाहते हैं तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. दिस वन हाउ मच डिड वी फाइंड आउट एज k रूट 7. टफ नहीं है. मेन चीज है हमने किया नहीं, अभी सर पूछ रहे हैं तो सर के सामने ढूंढ रहे हैं प्रॉब्लम. डू यू नो द वेजिटेबल्स? आई डोंट नो, क्योंकि चार्ट पढ़ाया था नर्सरी की तरह. दिस इज एन एप्पल. उस दिन नहीं पढ़ा. अभी बाजार में जाके पापा पापा वो क्या है? अब 3 के बाद पापा पिन देंगे पीछे, पता नहीं है वो भिंडी है, पता नहीं था. चलें. सो आई एम लिविंग इट टू यू. कीजिए. आज के बाद और नहीं डांटूंगा. आपके पास ना एक सब्जेक्ट नहीं है स्कूल में, मॉरल साइंस. हमारे टाइम पे होता था. मैं तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं. मॉरल साइंस में एक स्टोरी लिखता था. दिस इज ह्यूमन एंड दिस इज हिज कॉन्शियंस. विवेक, जब आप कोई गलत काम करते हो ना, आपका कॉन्शियंस बोलता है डोंट डू, देन स्टिल यू गो एंड डू. उसके बाद वही काम दोबारा करने से कॉन्शियंस और नहीं बोलता. जैसे आपने ये चुरा लिया मेरे घर से, पहली बार कॉन्शियंस बोलेगा मत करो. अगली बार इससे बड़ा चोरी करोगे तो ही बोलेगा. तो अगली बार अगर आप 7 दिन पढ़ के नहीं आए, मैं और नहीं बोलूंगा. मुझे मेरे फीस मिल गए हैं, मिल गए ना, क्लब मेंबरशिप फीस. आई एम वेरी हैप्पी. अगली बार 2 हफ्ते नहीं पढ़ के आएंगे तो फिर बोलूंगा. फिर 2 हफ्ते नहीं पढ़ के आओगे फिर नहीं बोलूंगा. एवरीवन इज आयरन व्हील एंड आयरन रेल्स, नो फ्रिक्शन. जा रहे हो, मेरा काम आपको गाइड करना है, मैं गाइड कर रहा हूं. अब थक गया हूं, अभी एज हो गया बेटा. अभी हर यही चीज बार बार सबको नहीं बोल सकते. पढ़ के आओ, पढ़ के आओ. काम ही क्या है? ना बर्तन मांजते हो, ना कपड़े धोते हो, ना टंगे हुए कपड़े नीचे उतार के भी लाते हो. कोई काम नहीं है. वॉशिंग मशीन भी नहीं चलाते हो. नहीं चलाया, किसी ने नहीं चलाया. तुम्हें पता ही नहीं वॉशिंग मशीन में कितने सारे नॉब्स है. दैट्स नॉट माय जॉब. तो अपना जॉब तो करो. चलो. कितना बढ़िया जा रहा है ना. संडे उठ के खा रहे हो डोज. यही डोज घर पे गिरते ना, बढ़िया हो जाता. सर, दे आर हैविंग सो मच ऑफ वर्क इन स्कूल, दे आर नॉट गेटिंग टाइम, दे आर अंडर स्ट्रेस. कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है. हमारे टाइम पे टीचर्स डे का एक ही टूल होता था, बाटा का सैंडल. हाँ, वर्ल्ड मदर्स डे, उससे जो कंट्रोल आता है वो जबरदस्त कंट्रोल है. नोबडी गोज दिस वे दैट. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में all we will be using is what all things you need to know. You need to know the angle values. Angle values आपको पता होना चाहिए. And you should know the angle values for sine, cos and tan. ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपको सब 60 डिग्री और 30 डिग्री में आएगा. क्यों 60-30 पे आता है? क्योंकि 45 में सब कर लेते हैं. 45 इज 1/√2. तो 45 भी रखिए. 45 अगर रख रहा है तो 0 भी रख लीजिए. 90 की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. हाइट्स एंड डिस्टेंस. इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक आपको एंगल वैल्यूज आना चाहिए, दूसरा आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आना चाहिए, तीसरा आपको ड्राइंग स्किल आना चाहिए, और चौथा है इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए. अच्छा,
In grade 8, you have done linear equations in one variable word problem. These are just similar to that. The difference that these will have is in those you had a story which you used to break down into an equation. So I always used to say the question will be in English. If you are good in English, interpret it in English and break down the problem. If you think that you are good, but you still want to go with your mother tongue or some other language, which I always say you should, अपने लैंग्वेज को तोड़िए, क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको समझ में. हियर क्वेश्चन आपको देगा नहीं कैलकुलेट tan थीटा, एक कहानी बोल देगा, ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट. अल्टीमेटली हर कहानी राइट एंगल ट्राइंगल में जाएगा. इंग्लिश क्यों आना चाहिए? बिकॉज द क्वेश्चन विल हैव अ स्टोरी. एवरी स्टोरी हैज टू ब्रेक डाउन इनटू अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये ब्रेक डाउन होना ही पड़ेगा आपको, जहां आपको आपकी ये स्किल की जरूरत पड़ेगी. अगर ये नहीं आता है तो आप गए, स्केल शायद आप लाए नहीं है. एनीवेज, ठीक है. नहीं, मैं अभी मुन्ना भाई MBA, हाँ मैं गुस्सा नहीं होता हूँ ना, डॉक्टर अस्थाना, मैं हंसते रहता हूँ, कोई बात नहीं. तो ड्राइंग स्किल्स आपको आना चाहिए एंड इक्वेशन फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, ठीक है. और कुछ नहीं है. और ये प्रॉब्लम में हम प्रॉब्लम से ही सीख सकते हैं. देयर इज नथिंग आई हैव टू टीच यू बिकॉज इट्स ऑल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. So you should know what is sin cos tan, you should know the angle values, you should know a little bit of English, you should have a drawing skill. And तो करे problems, तो कुछ problems लेके आए हैं, आइए problems करना शुरू करते हैं. So let's read the question. बार बार पढ़ेंगे और कैसे drawing करते हैं वो भी सिखाएंगे आपको. A vertical pole stands on a level ground. पहले पेंसिल मत लो, पहले सीखो, just listen. इसलिए कहता हूं आप क्लास में मन दीजिए. So we have got a level ground, right? तो हमने एक level ground बनाना है. तो यहां पे this is our level ground. इसके ऊपर कैसा है? इसके ऊपर एक vertical pole stand करता है, ठीक है. If you want to draw it in 2D, say suppose किसी को 2D में इसको draw करना है, तो vertical pole दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे? हम vertical pole को हम vertical pole को ऐसे भी दिखा सकते हैं. This is a vertical pole which is standing on a level ground. समझ में आया? लेकिन द क्वेश्चन विल बी ऑल अबाउट 3D. तो 3D करने के, तो 3D बोल रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल. तो बेसिकली हम पोल की एक्सिस को ले लेंगे विच विल बी अ पार्ट ऑफ आर. तो अगर आप ये ओनली द रेड लाइन से भी आप अगर प्रोसीड करोगे प्रॉब्लम करने के लिए तो भी आप करेक्ट हो. आपको ये पोल बनाने की जरूरत नहीं, ओनली द रेड लाइन ऑल्सो हेल्प्स इट. ठीक है, इतना समझ में आया? अभी देखो, फर्स्ट एब्जॉर्ब. इट सेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ये क्या है? ये वो ग्राउंड है 25 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. अब ये नहीं बोला है कि लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है, ये आपकी मर्जी. आप फुट ऑफ द पोल से कितना मूव करेंगे? 25 meters. आप इधर भी मूव कर सकते हैं, आप इधर भी मूव कर सकते हैं. कुछ कुछ क्वेश्चंस में रहेगा फ्रॉम अ पॉइंट 30 ऑन द लेफ्ट हैंड एंड 40 ऑन द राइट हैंड, ऐसे रहेगा. देन इसमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं है. द एंगल ऑफ एलिवेशन and this, okay, I missed out to say something, so let me go back to my explanation. एक चीज छूट गया बेटा, सॉरी. क्या होता है, दिमाग आउट हो जाता है ना, इसलिए छूट जाता है. सो दो चीज, एक चीज सीख लेते हैं पहले. दिस इज रिक्वायर्ड. सो लेट्स से दिस इज अ रेफरेंस लाइन, ठीक है. एंड ऑन दिस रेफरेंस लाइन, दिस इज, ये आपको बहुत आएगा, दिस पर्सन इज नोन एज द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर, ठीक है. ऑब्जर्वर जब कोई चीज को देखता है तो वो बाय डिफॉल्ट सीधा सीधा देखता है. अब जो लोग नजरें चुरा के रहते हैं वो बात अलग है, सीधा सीधा देखता है. समझ में आया? जब वो सीधा सीधा देखता है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट. क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट. सीधा सीधा देखते हैं, है ना. पुराने जमाने में मूवीज में होता था, जैसे द न्यू गर्ल हैज कम मैरिड टू अ वेरी रिच फैमिली. तो लड़की को भी तो बताना है ना हम कितने रिच हैं. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग लेके दिखाते हैं, जहां तक तुम्हारी नजरें जाती हैं सारी जमीन हमारी है, एज मच एज यू कैन सी. तो हम इतने रिच हैं. लाइन ऑफ साइट. ये लाइन ऑफ साइट जब किसी लंबे चीज को देखता है तो आप कैसे देखते हो? ऐसे देखते हो, उड़ जाता है वो. तो जैसे आप किसी लंबे चीज को देखते हो तो आपका लाइन ऑफ साइट पैरेलल से ऊपर उठ जाता है. वाह, आप बुर्ज खलीफा को देख रहे हो अभी. समझ में आया? ऐसे केस में जिस भी बिल्डिंग को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी बिल्डिंग को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, मान लीजिए आप यहाँ पे एक बिल्डिंग को देखने की कोशिश कर रहे हो ऐसे,
वहां ऊपर में कोई बैठा है या बैठी है, जो भी है, तब आप इसके साथ जो एंगल बनाते हो ना, लेट्स कॉल दिस एंगल सेज अल्फा, और एंड एनी बिल्डिंग विच यू सी, सपोज यू आर वॉकिंग एंड यू सी अ बिग शॉपिंग मॉल इन फ्रंट ऑफ यू, तो शॉपिंग मॉल में ऐड रहता है ना, पैंटालून्स ये सब लिखा, तो आप क्या बोलते हो, द एलिवेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन। जब भी आप किसी बिल्डिंग को इस नजर से देखते हो तो आप बोलते हो ये है बिल्डिंग का एलिवेशन, या फिर इसको आर्किटेक्ट लोग बोलते हैं द फ्रंट फसाद, इज अ ग्लास फसाद जैसे बोलते हैं, द फ्रंट एलिवेशन। और जब आप ऊपर से बिल्डिंग को देखते हो, इसको हम बोलते हैं द प्लान। क्या दिखेगा आपको ऊपर से, ओनली अ स्क्वायर दिखेगा। टाइटेनियम टावर को ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ एक स्क्वायर दिखेगा ना, फर्स्ट सेक्शन व्यू, जस्ट सी स्क्वायर, दिस आल्सो कॉल्ड द प्लान और द टॉप व्यू। सो एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम थ्री साइड्स। और अगर आप इस साइड से देखोगे, सो दैट इज कॉल्ड, अगर आप इस साइड से देखोगे, दिस इज कॉल्ड द साइड व्यू, साइड व्यू। नाउ ट्राई एंड थिंक, विजुअलाइज एनी टावर ऑफ आवर पेबल सिटी इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे आप टावर को सामने से देखते हो तो आप क्या देखते हो, डी टावर, ऐसे, वो है उसका एलिवेशन। एरोप्लेन से ऊपर से जाओगे तो क्या देखोगे, स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द प्लान और द टॉप व्यू। और साइड से देखोगे तो साइड व्यू। ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ एलिवेशन से काम चलाते हैं। तो ये एलिवेशन हो गया। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? जब आपका लाइन ऑफ साइट पैरेलल से ऊपर उठ जाता है, आप कितने एंगल से देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड दीस टेक्निक्स वर यूज्ड बाय ग्रीक्स। हुबहू करेक्ट आंसर देता है ये, समझ में आया? अच्छा, अब क्या हुआ, ये बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा मेंढक है। ओ, मेंढक मीन्स द फ्रॉग, एक फ्रॉग है, और आपको इच्छा हुआ इस फ्रॉग को भी देखने की। तो फ्रॉग को देखने के वक्त आपकी नजरें कैसे हैं, नीचे झुक गई। सॉरी, when you try to look at the frog, how do you look at the frog? Your line of sight now comes down, ऐसे नीचे आ गया, या से the foot of the tower आप देख रहे हो, नीचे चला जाता है। Did you understand? नीचे चला गया। ऐसे केस में ये जो आप एंगल बना रहे हो, ये एंगल बीटा, ये बीटा को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जानते हो ना, अ मेंटल स्टेट व्हेन अ पर्सन फील्स वेरी लो, व्हेन यू सी लो, डिप्रेशन, ऐसे याद रखना है। और अगर आपने ग्रेड 7 और 8 में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा होगा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन के ये भी बीटा ही बन जाता है। आगे ड्राइंग्स में जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे, इसी को दिखाएंगे। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? यस। सो पीपल ऑलवेज यूज्ड टू से a chauvinist male. You know who is a male chauvinist? Yes, Piyusha, who is a male chauvinist? Male chauvinist. You have not heard this word, male chauvinism? Male chauvinism is that property in which males do not want the development of females to happen. CHAUVNISM, chauvinist. Okay. So male chauvinist कौन होता है? जिसे औरत की तरक्की मंजूर नहीं है। तो जोक में कहते हैं male chauvinist always marries a टॉलर लेडी, ताकि वो जब बात करता है तो आंख उठा के बात करता है, और जब वो औरत बात करेगी तो वो सर झुका के बात करेगी। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ताकि वो समझ में नहीं आया तो ऐसे ही समझ के याद रखना। समझ में आया? क्लियर? इंग्लिश पढ़ो। मेल चॉविनिज्म इज अ वेरी कॉमन वर्ड। इट मीन्स औरत क्यों पढ़ रहे हैं, औरत को पढ़ना है, आप घर में चूल्हा चक्की करो, वो दैट मेंटालिटी। क्लियर हो गया ये एंगल ऑफ एलिवेशन? तो जैसे आप देखोगे, अब काइट इज फ्लाइंग इन द एयर, वो सब एंगल ऑफ एलिवेशन प्रॉब्लम आएगा। अ शिप इज सेलिंग, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन हमारे आते ही रहेगा। टेल मी, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? फैन तो चला लेना बेटा, मतलब ये इतना लाइफ स्किल का प्रॉब्लम है, फैन की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो पीछे से देखो ना, उसको पावर ऑन है कि नहीं तो फिर साइंस पढ़ना छोड़ दो बेटा, तो ब्लिंकिट में अप्लाई कर लो। ऑन है फिर भी नहीं चल रहा है, अभी आज चल रहा था फिर बंद हो गया। अच्छा, छोड़ दो, देखेंगे फिर और क्या करें। चलें आगे। यार बीपी हो गया है मेरा यहाँ पढ़ाते। तो वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, राइट, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो कोई पॉइंट है, और वो पॉइंट कितने दूर पे है?
25 meters away है. So let's say कुछ 25 meters यहाँ पे है. Foot of the pole, the angle of elevation of his top is found to be how much? The angle of elevation has been found to be 60 degree. ठीक है ना? तो 60 डिग्री इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप से. तो ये हुआ. ठीक है. अब क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, तो इसको कुछ नामांकन कर देते हैं. लेट दिस बी P, लेट दिस बी Q, लेट दिस बी R. ठीक है ना? और फिर हमें कहता है blah blah blah, find the height of the pole. So we should now know also how much is this much as a measurement. इसकी मेजरमेंट कितनी है और ये है हाइट ऑफ द पोल. ठीक है ना? इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं. एंड ये कितना है बेटा? 25 मीटर्स. हाइट ऑफ द पोल हमें पता नहीं, ये h मीटर्स पकड़ लेते हैं. ठीक है. और एंगल कितना दिया है हमें? 60 डिग्री दिया है. अब प्रॉब्लम को करने का चीज. सो हम प्रॉब्लम को करते हैं, आराम से लिखते हैं सॉल्यूशन. ठीक है. लेट PQ equal to h be the height of the tower, height of the pole. Given QR is equal to 25 meter. R is 25 meter away from Q. R is 25 meter away from Q. क्लियर है? नाउ टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है बेटा? टू फाइंड PQ इज इक्वल टू H इज इक्वल टू हाउ मच. बस अब हमें ट्रिगोनोमेट्री लगाना है. क्या क्या दिया है देखो तो. हाइट दिया है, ये दिया है, ये tan का रेशियो बन रहा है. 60 पे तो हमें tan का रेशियो पता है. tan 60 is √3 और tan 60 will be this by this. So we write in triangle PQR, tan of 60 degree should be equal to what? Opposite side by QR should be equal to h upon 25. तो फिर h की वैल्यू कितनी हुई? 25 into tan 60. और 25 tan 60 कितना होता है? 25 into √3. और √3 की वैल्यू आपको 3 डेसिमल तक दिया है, तो आपको भी आंसर 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करना चाहिए, जो कि मैं नहीं करूंगा, आप कैलकुलेट करेंगे व्हाटएवर इट इज मीटर्स. एग्जाम में अगर आपको ऐसा नहीं देता है, आप 25 √3 मीटर्स लिख के भी छोड़ेंगे तो भी ये करेक्ट ही माना जाता है. You can also do this by sin 60 degree or theta. 60 डिग्री थीटा लेने से ये चाहिए ना, साइन में हाइपोटेन्यूज चाहिए हमेशा. कर सकते हो, मेहनत करोगे. You are going much more tougher. Do you have the sine के लिए? You always need sine is what? Opposite by hypotenuse. Hypotenuse आपको पता है? नहीं दिया है ना क्वेश्चन में. This is अब आपने 1 मिनट रिवाइंड करो. तुम सब लोगों ने इसको कॉपी कर लिया इस क्वेश्चन को. अब आपने सोचा ही नहीं. ये है टिपिकली, आप अपने बिल्डिंग का हाइट भी तो ऐसे ही निकाल सकते हो. अपने बिल्डिंग के टॉप में किसी को बोलो खड़े हो जाओ और एक रस्सी फेंको, और किसी को बोलो 25 मीटर पे उस रस्सी को पैक कर दो. पैक कर दिया आपने, यहाँ पे प्रोटेक्टर लगा लो, यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर लगा लो. जो भी थीटा आपको मिला, कैलकुलेटर उसके tan वैल्यू आपको बता देगा. ये डिस्टेंस आप जानते हो, तो आपको बिल्डिंग की हाइट मिल गई. इनफैक्ट यू गाइस कैन मेजर. किसी का घर अगर 19th फ्लोर में है, टेरेस में तो आपको जाने नहीं देगा. टेरेस से एक काइट का धागा फेंकिए, टाइट फेंकिए और एक्सपेरिमेंट करिए ऐसे. ये हुआ ना लर्निंग ऑफ मैथ्स. या फिर आपने कोई इसका पोल, बैडमिंटन का पोल देखा, तो बैडमिंटन का क्रॉस कोर्ट डिस्टेंस आपको पता है, मेजर कीजिए, एंगल निकालिए, पोल का हाइट आ गया. अंडरस्टूड? दिस विल बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ सम प्रॉब्लम इन फिजिक्स इन ग्रेड 11. तब बैठ के इतना कुछ नहीं कर सकते. तब आपको देगा एन इंजन रॉकर आर्म, इंजन ऐसे खट 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 मारता है ना, रॉकर आर्म डिस्प्लेसेस 25 meters on maximum outer stroke, creating an angle. Rocker arm you don't know. Okay, anyways, the engine has an arm also. So the rocker arm is getting how much? 25 centimeters on an outer stroke and comes back 15 centimeters required. तो दो एंगल्स बनेंगे उसमें. तो आप स्ट्रोक निकाल सकते. ठीक है. 25 √3 1.7. 1.7 is almost 2 times के आसपास. 25 को 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 50.
लेकिन आप क्या कर रहे हैं 1.7, तो 50 से पहले उस पे वही उस पे मत जाओ। ये सीबीएसई या दिमाग से प्रॉब्लम मत करो। 43 से कुछ लेना देना नहीं है हमें। आपने इसको समझा, इसको अप्लाई करना सीखा, तो ही आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे आगे जाके। वो 43 को टैली करके मैम माय आंसर इज 43, यू गिव मी हाफ मार्क, भिखारी मत बनो। पहले सीखो, इसमें कुछ सीखने को मिला क्या। चलो इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसा है डायग्राम, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग, काइट नीचे उड़ता है कि ऊपर उड़ता है? काइट ऊपर उड़ता है। तो जब भी हमें प्रॉब्लम दिया रहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में बेस को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो ये हमारा बेस है, दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो कहता है अ काइट इज फ्लाइंग व्हिच इज अटैच्ड टू अ थ्रेड which is 165 meters long, अच्छी बात है। thread is the thread makes an angle of 30 degree with the ground, मतलब आदमी को काफी छोटा मान लिया है, diminished। thread कितना एंगल बना रहा है? thread 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये हमारा थ्रेड है काइट का। थ्रेड कितना एंगल बना रहा है बेटा? थ्रेड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the ground। find the height of the kite from the ground assuming there is no slack in the thread। slack का मतलब क्या है? It's not like स्ट्रेट है, नहीं तो आप हाइपोटेन्यूज एज्यूम नहीं कर सकते। अर्जुन एंड द्रोणाचार्य स्टोरी पढ़ा है ना, क्या दिखता है? पेड़ दिख रहा है सर। क्या दिखता है? बर्ड दिखता है सर। व्हाट वाज अर्जुन्स रिप्लाई? आंख दिखता है। उस आंख को ढूंढिए क्वेश्चन में। अगर ये स्लैक होता तो ये वायर कर्व हो जाता। आप इसमें ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं बनाया। बट इन रियलिटी इफ यू सी ऑल काइट्स विल फ्लाई विद अ स्लैक। काइट फ्लाइंग तो देखा होगा ना, डोंट मेक दैट डम्बो फेस। काइट फ्लाइंग में कोई भी काइट का धागा सीधा नहीं रहता है, स्लैक ही रहेगा। स्लैक क्यों हो जाता है? ग्रेविटी नीचे बुला रहा है उसको, सिंपल बात। स्पेस में होने से सीधा होता ना, स्पेस में काइट ही नहीं उड़ता उड़ती के, तो स्पेस में एयर ही नहीं है। कुछ भी बोलते रहते हो तुम। बट तो ये हमारा काइट है, ठीक है। तो ये काइट फ्लाई कर रहा है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। खाली रट्टू तोते की तरह आंसर निकालने में बिजी हो जाते, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ए ले लो, तो बी ले लो, उसको सी ले लो। अब क्वेश्चन को फिर फिट करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग and the thread is how much? 165 meters long। ये थ्रेड 165। अब तुम्हारे साइन का बात आएगा क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज दे दिया है, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द काइट। हाइट ऑफ द काइट क्या है? h। तो रेशियो क्या बन रहा है? देखो तो एंगल है, ऑपोजिट दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया है। ये प्रॉब्लम चक देख इधर, दिव्या मेरी तरफ देखो, इसका पांव तो बाएं तरफ है, ये दाएं की तरफ शॉट लेगा, ये साइन की तरफ प्रॉब्लम जाएगा। तो अगर इस प्रॉब्लम को ऐसे ही करने की कोशिश करें तो साइन कितना होगा? साइन ऑफ 30 शुड बी h अपॉन 165। सो h बिकम्स इक्वल्स टू 165 साइन 30। वो जो वर्क में पढ़ते थे ना f cos थीटा, वैसे ही तो आया। और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। 165 को हाफ करेंगे तो फटाफट कैसे करोगे? 160 का हाफ कितना होता है? 80। और 5 का हाफ होता है 2.5, 2.5। तो ये हो गया 82.5। देखो तो तुमने काइट की हाइट भी निकाल ली, कितना धागा निकला। भाई साहब समझ में आ रहा है? आज एक बास्किन रॉबिन खाएंगे। वैसे मुझे ग्रामीण वाला ज्यादा टेस्टी लगता है। ग्रामीण कौन सा? ग्रामीण की आइसक्रीम खाए हो कि नहीं? एक ग्रामीण ब्रांड ट्राई नहीं किया? ट्राई करो। अरे ग्रामीण का मटका मलाई कुल्फी ट्राई करो, अभी डिस्काउंट में भी चल रहा है ब्लिंकिट में। डिस्क कुल्फी भी अच्छा था, डिश जो आता है। ग्रामीण इज अ ब्रांड, उसका स्टिक कुल्फी इज वेरी टेस्टी एंड गोल 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 ये भी आता है डिस्क और मटका भी। गाँव में नहीं मिलता बेटा, तो नेम इज ग्रामीण, ब्लिंकिट में मिलता है बेटा। अमूल छाछ doesn't mean it comes with somebody like a lady with a घूंघट and छाछ चाहिए भाई साहब, वो ऐसे ग्रीन पैकेट में ही आता है। आशका खाए हो ग्रामीण वाला? इसको देखो, टांग वांग उठा के टेबल में लगा के आराम से बैठी है, वाह, इसको बोलते हैं पिकनिक जैसा। दिल्ली नहीं, ये कच्ची बोली।
अच्छा, वो बिल्ली उसका बैकग्राउंड है, बिल्ली घर में नहीं है, क्योंकि बिल्ली होने से उसका साइड का जो ये सब है ना, ऐसे ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम नहीं आएगा, बाल ही आएंगे, बैकग्राउंड मिक्सिंग हुआ है ना उसका। तो अभी आन्या का चेहरा पीछे से क्लोज पॉलीगन जैसा दिखता है, इतनी शर्मा गई कि वो चली गई बिल्ली से। चले आगे, चलो ये वाला करो। The length of a string between a kite and a point on the ground is 85. तो हमेशा प्रॉब्लम, पहले हमेशा एक रफ स्केच किया करो, रफ स्केच, पेंसिल लेने की, स्केल भी लेने की जरूरत नहीं, फिर नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करना। तो ये हमारा ग्राउंड है, कहता है द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे कोई जमीन है और काइट तक, ये मानो काइट है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 85 मीटर्स। यानी कि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हाइपोटेन्यूज पे बात कर रहा है, आगे देखेंगे। 85 मीटर्स सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, यानी कि ये काइट जो है ये हमारा काइटवा है। अरे काइटवा कहाँ हो गया, कटी पतंग हो गया, ये काइटवा है। सच दैट tan थीटा, यानी कि यहां से यहां, थीटा कहां पे है भाई साहब, थीटा यहां पे है, tan थीटा and makes an angle theta with the ground level, so theta, tan theta is equal to 15/8। तो इसको थोड़ा नाम दे देते हैं A B C। बात कर लो, तुम लोग तीनों का ना मैं अलग बैठाऊंगा अगले क्लास में, है ना? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग दिस, वो नहीं, फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जब तीनों पे इल्जाम आ रहा है ना, ऐसा मत बनो, मैंने तो बात नहीं किया, फिर धोखेबाज फ्रेंड हो, बोलो हाँ सर हम तीनों को दंड दीजिए, ठीक है? अगले क्लास से याद रखना, हाँ, तीनों तीन बेंच में बैठोगे, ठीक है? तो एबीसी कहता है सच दैट tan थीटा इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हाइट हमें नहीं पता, अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, बात वही आ गई, क्लियर? तो अब हम लिखेंगे, हमें कितना दिया हुआ है, आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग, आई रोट द स्टेप्स इन द फर्स्ट प्रॉब्लम, यू आर सपोज्ड टू फॉलो इट दैट वे। tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, AC अपॉन BC, ठीक है? तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ग्राउंड। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 15/8 इज इक्वल टू हाउ मच, AC कितना है, AC बाई BC वी डोंट नो, सो दिस इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, H अपॉन BC। अब क्या करेंगे, H भी नहीं पता, BC भी नहीं पता, आप प्रॉब्लम कैसे, Sine ratio by any chance to compare it? हमें क्या पता, ऐसे निकाल सकते हैं ना, हाँ कैसे निकाल सकता है भाई, कैसे निकाल सकता सर ये नहीं कर सकते सर tan is opposite upon है, हाँ ऑपोजिट अपन एडजस्ट किया ना, H अपॉन BC, हमका BC नहीं मालूम भाई, देखो ना क्वेश्चन, फिर the length of the string between a kite and a point on the ground is 85, length of the string between a kite and a point on the ground is 85 तो आपने ले लिया, H आपने ले लिया, आपको लीनियर इक्वेशन डबल वेरिएबल कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक और रेशियो लो ना, कैन आई नॉट राइट नाउ, कॉस का रेशियो लेते हैं, तो आ जाओ, 85 कहाँ यूज करोगे, हाँ tan इज इक्वल टू, हाँ 15 इक्वल टू साइन नहीं हो सकता है, 3/17 ये एक रेशियो है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 30/16, तो हम, मैं तो कह सकता हूँ साइन इज 30 भी, ये एक रेशियो है। आप यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो लेके देखो तो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या है, H/85, कॉस थीटा का रेशियो लो तो कॉस थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, BC/85। क्या BC आपको पता है, क्या BC आपको पता है, क्यों नहीं पता है, ये तो पता है ना BC की वैल्यू, BC इज इक्वल टू 8H/15, ऐसे अभी भी नहीं निकलेगा,
डालो ना, BC कितना है इसको, BC इज 8H by 15। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा अभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। एक अननोन, हाँ निकालो, रेशियो करने की क्या जरूरत है, सीधा इट्स अ डायरेक्ट ट्राइंगल ना। आप tan थीटा इज AC by BC। AC की वैल्यू क्या है H, तो BC की वैल्यू निकली ना 15/8 इज इक्वल टू दिस। BC की वैल्यू कितनी निकली 8H by 15, तो 8H by 15 मैंने डाल दिया, H की जगह पे H है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, 64 H square by 15, 15 is 225 plus H square should be equal to 85 का स्क्वायर। अब H square नहीं निकलेगा, डिड यू अंडरस्टैंड? किसको समझ में नहीं आया बेटा ये? आप tan थीटा दिया है, आपको tan थीटा की वैल्यू दी है, तो tan थीटा के से हम BC को निकाल सकते हैं ना। इसमें K और X डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज tan थीटा इज AC by BC। हियर द रेशियो इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। अब इसको सॉल्व करो, 85 का स्क्वायर 72, ओके, सो 7225 is equal to H square plus 64 by 225, और यहाँ पे भी H square। हाँ सर, 85 equals to root of this. हाँ टेक रूट। सर स्क्वायर के टर्म में तो ले सकते हैं ना, पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी किस चीज में? स्क्वायर के टर्म में। पर 85 स्क्वायर कैंसिल है तो फिर रूट में ये है। 85 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर लिया जो, हाँ सर 225 नहीं इसको कर सकते हो, और एल्स यू कैन डू डायरेक्टली लाइक दिस आल्सो। 85 is equal to, what is the 85 is equal to root 10:30 is the class. Who has come? 10:30 is the class, Yadu. So 85 is equal to how much? 64 by 225 plus H। ये भी H square है, ये भी H square। You can take H common, H common लेने से H आ जाएगा, और यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा 225, 64 plus 225। इसको ऐड करो और स्क्वायर करो, तो 25 कितना हो गया आपका? अब समझ में आ गया? आई थिंक 17 होगा ऊपर में, 17H by 15 इज इक्वल टू 85। अब H आ गया आपका, वो करने की जरूरत नहीं है। Angad is correct. You did not go that much. In fact, this is the main equation, but if you use only this much, it is fine. We'll have a class more on heights and distances, that you don't worry. But at least by the next class, don't have any backlogs. It is my earnest request. Uphill identities. आप भले ये ना करो, या Sir, after 64, can we take the LCM and then do it? हाँ LCM ही तो लिया ना बेटा। इसको कैसे सॉल्व किया, इसको H स्क्वायर को कॉमन लिया, 64 प्लस 1 बाई 225, यही तो किया, और इसका रूट था, तो H स्क्वायर कम्स आउटसाइड एज H। नाउ इट इज 64 by 225 plus 1, so 225 is the LCM, 64 plus 225, which will give you 349, I think, right? Even, sir, I नहीं, नहीं। think that we do like 85 square as whatever the big number and then the LCM on the other side. फिर आपको जैसे इच्छा करो। आई थिंक दिस इज अ इजियर वे टू डू। यू वांट टू सॉल्व इट इन दिस वे, यू कैन डू इन दिस वे, योर विच। इन दिस यू विल बी जस्ट हैंडलिंग मोर बिगर नंबर्स। वी हैड द स्क्वायर ऑफ दिस विच इज 1725, पर वैसे बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पे 225 लोगे, फिर 225 से मल्टीप्लाई करोगे और बड़ा हो जाएगा, ठीक है? So what are the takeaways? क्लास क्लोज करता हूं। The takeaway is number 1, जो बच्चे